کے لیے روشنی ہے. اب تیرا کلام روشنی کرے گا آگے آگے تو میرا محافظ بن کر چلے گا. تو خداوند میں پیچھے پیچھے چلوں گا, وہ تیرے مسکنوں میں مجھے لے جائے گا, میرے گھر میں لے جائے گا. اور اب میں یہاں پر تو اس لیے وہ خداوند سے گزارش کرتا ہے. تو آواز کیا ہے؟ کلام آواز ہے. اپنے کلام کو وہی مجھے تیرے مسکنوں تک لے جائے. تو یہاں پر اب کلام مجسم کنویں پر موجود ہے. بی بی جو ہے یہاں پر پانی لینے کے لیے آئی ہے, اور اس نے اس کو کہا زندگی کے پانی کی دعوت اس کو دی. اس نے کہا جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے, یعنی یہ پانی جو ہم بھی پیتے ہیں, جو اس پانی میں سے, یہ پانی جسمانی ہوتا ہے نا, جسمانی ضرورت کو پورا کرتا ہے, روحانی ضرورت تو نہیں پورا کرتا. جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا, مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا, کون سا پانی؟ روحانی پانی. اس پانی میں سے پیے گا وہ جو میں اسے دوں گا وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا, بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی تک جاری رہے گا. لوگ برکت پائیں گے, لوگ شفا پائیں گے, لوگ اس پانی میں سے اپنی پیاس بجھائیں گے, روحانی پیاس. تو بہت سے لوگ ہیں وہ خدا کے کلام کو سنتے ہیں, خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں, روز بروز برکتیں پاتے ہیں, خدا ان ترقی دیتا ہے. اب بہت سے لوگوں پر خدا ان کا کرم تو ہوتا ہے, خدا ان دیتا بھی بہت کچھ ہے, لیکن جب خدا کا کلام ہوتا ہے تو خدا کے کلام کے زاویہ میں وہ اپنے آپ کو نہیں ڈالتا. آیا اس کلام کے مطابق میری زندگی درست ہے؟ کیا ان چیزوں میں سے کوئی چیز تو میرے اندر نہیں پائی جاتی جو خداوند کے کلام کو میری دل کی زمین پر اگنے نہیں دیتی, بڑھنے نہیں دیتی؟ آیتاں بڑیاں آندیاں, آیتاں سانو بڑیاں آندیاں, جتھے مرضی کھلو کے آیتاں بول دے. آیتاں کیوں بولیاں جاندی ہیں؟ اگلے تے پریشر. لوگ آیتاں بول دے, انہوں پتا لگے بڑا کلام جانتا ہے, بڑیاں آیتاں جانتا ہے. تے آیتاں ہی جانتا ہے نا, خداوند تو نہیں جانتا. خداوند جب یہاں پر آتا ہے تو پھر وہ خداوند کو جاننے لگ جاتا ہے. خداوند کے کلام کو ویلکم کیا جاتا ہے. میں تیرے لیے اپنے گھر کو سجاتا ہوں. آج یہاں پر ہمارے نوجوان بھائی نے یہاں پر اہتمام کیا خداوند کے آنے کا. تو جب ہم باہر اہتمام کرتے ہیں تو روحانی طور پر دل کو بھی کھول دے, خداوند تیرے کلام کو لینے کے لیے. تیرے کلام کو میں ویلکم کرتا ہوں, میں تیرے کلام کو لیتا ہوں. خداوند یہاں پر آ, جب تو آئے گا تو یہ جو میرے دل کی کھیتی ہے یہ سج جائے گی, بہاریں ہی بہاریں ہوں گی, پھول پودے نکلیں گے, پھل لگے گا, پھل وہ پھل جو دوسروں کی. خداوند تیری تعریف, تیرا شکر. اب یہ ہے, یہ تو وہ ہوئے جو لے لیتے ہیں. تو کچھ لوگ سال ہر سال سے کلام سنتے رہتے ہیں اور خداوند کے کلام کے بیج کو اگلے نہیں دیتے, جیسے پہلے بتایا گیا. اور بارش کی طرح خدا کا کلام برستا تو ہے, مگر ٹبے ہیں, وہ ٹبوں پر سے بہ کر اب وہ دیکھتا ہے کون خاکسار ہے. یہ روحانی بات ہے, تشبیہ دی گئی ہے دنیاوی بارش سے, لیکن کلام کی بات روحانی ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیڑا بندہ خاکسار ہے. جو خاکسار ہے, جو اپنے آپ کو آتے رکھے, جو اندر ہی اندر دکھی ہے, خداوند کاش تو میرے دل میں آ جائے, خداوند تو میرے دل میں. کچھ لوگوں کا یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ جو کلام سنا ہے, یہ کلام جس طرح سے سنا ہے یہ اسی طرح سے مجھے یاد رہے.
और फिर याद कैसे रहेगा? जब हम उस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालें, जो कलाम सुना। हम भी ये कहते होते थे किसी वक्त कि जिस तरह बाबा जी कलाम दे रहे, हमारे उस्ताद मोहतरम मास्टर सोनलाल पालूस जब मैसेज दिया करते थे तो हम भी इसी तरह से कहते रहते थे कि बाबा जी के अंदर ते खुदा का कलाम पुट पुट के पड़ा है। और फिर हम कहते थे लो जी बाबा जी शुरू हो जाना एक बारी, रूहानी आबे हयात दा एक मौका खोले जाता है पंजाबी च। और हम ऐसे होते थे, क्या वो लिखा हुआ वहां पर, तुम नजात के चश्मों से भर भर के पियोगे तो रजोगे ही नहीं। तो हम इस तरह से ऐसे महसूस होता था जैसे कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं। तो बड़ी बरकत हालेलुया। हम उस बरकत में खो जाते थे, अपने आप को भी भूल जाते थे। हमें ये भी याद नहीं होता था कि हमने खाना भी खाना है, हम कैसे बैठे, नहीं कोई परवाह ही नहीं किसी बात। बस खुदा के कलाम की गहराइयों में वो मंजर आज तक याद आते हैं, भूलते नहीं। ये बातें हमेशा नहीं रखते। आपने देख कैसे खुदा के घर में नजात की शादमानी की, नजात की रागनियां बोलती, क्या वो मंजर आता है। उस मंजर के लिए, उस वक्त के लिए हम तरसते हैं। ये नहीं कि आप, मैं भी तरसता हूँ, हालांकि मैं वहां पर हूँ, मेरे लिए जाना वहां पर मुश्किल नहीं है। मेरे जाने के साथ खुदा मुझे पता है, मगर वो बात जो थी वो बात नहीं। क्योंकि जब बदन पूरा होता है तो फिर सर होता है। कलीसिया तो 2-3 से भी बनती है, लेकिन खुदा पूरे बदन को मानता है, पूरा बदन जिनको उसने बचाया है। अब ये है कलाम बरसता है मगर वो अपने दिलों की जमीन को सख्त कर लेते हैं। आपने देखा कुछ जगह पर मिट्टी इतनी सख्त हो जाती है कि वहां पर पानी पड़ता है, बारिश पड़ती है तो वो जगह फिर सूखी की सूखी रहती है, पानी ढल जाता है, जो टिब्बे होते हैं उनकी मिट्टी सख्त हो जाती है। तो इस तरह से वो पानी फिर आगे चला जाता है। कहाँ चला जाता है? जो खाकिसार है, जो नाचीज अपने आप को समझता है, जो अपने आप को अदना समझता है, जो कहता है खुदा मैं कुछ नहीं जानता, मैनू कुछ नहीं आता, ऐ जो भी तो देना है ना, ये भी मेरे लिए सारा कैसे अपने आप का इनकार कर, मुझे कुछ पता नहीं। तो विक्टर पौलुस क्या कहते हैं, जब मैं कमजोर होता हूँ तब ही मैं जोर पाता हूँ। अब कलाम ये है, जमीन सख्त हो गई है, कलाम जो है वो ना हम दिल की जमीन पर लगने देते हैं, ना टिब्बों को तोड़ते हैं। और क्यों? इसलिए कि अगर कलाम लग गया तो हमें फल भी लाना पड़ेगा, यानी हमें फल लाना पड़ेगा। तो फल जो है वो हम ला नहीं सकते, क्योंकि फल में फिर खाकिसारी होती है, आजिज़ी होती है, हलीमी होती है, फिरोतनी होती है। ये हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी तो जड़ी गल ते अड़ जाइए फिर उत्थे ही अड़ जाइए, तो सानू हलावे कौन? तो ये है कि इस तरह से वो लोग खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी में आने लगे। इब्रानियों 6 बाब की 5-7 आयत में देखें जरा, इब्रानियों 6 बाब 5-7 आयत पढ़े। खुदा के कलाम में लिखा है, और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके एलानिया जलील करते हैं। और आगे 6 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, अब बारिश का जिक्र था, पानी का जिक्र था, जमीन का जिक्र था, दिन की जमीन है। लिखा है क्योंकि जो जमीन उस बारिश का पानी पी लेती है, कौन सी बारिश का? खुदा के कलाम की रूहानी बारिश होती है, जो उस पर बार बार होती है। हम कितनी बार 20 सालों से कलाम सुनते हैं, और उनके लिए कारआमद सब्जी पैदा करती है, जिनकी तरफ से उसकी काश्त भी होती है।
अब बालकों के लिए जिन्होंने काश्त की है, उनके लिए काम सब्जी पैदा की है, तो वो खुदा की तरफ से बरकत पाती है, खुदा की तरफ से वो बरकत पाती है। और अगर झाड़ियां और ऊंट कुटारे उगाती है, तो वो नामकबूल और करीब है कि लानती हो। और उसका अंजाम क्या है? उसका अंजाम जलाया जाना। पढ़े आयत 6-7 आयत। क्योंकि जो जमीन उस बारिश का पानी पी लेती है जो उस पर बार बार होती है। ये कौन सी बारिश है जिसके बारे में पहले जिक्र है? क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती है और बर्फ पड़ती है और फिर वो वहां वापस नहीं जाती, बल्कि जमीन को सैराब करती है और उसकी शादाबी और रोयदगी का बायस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे। आगे इसका खुलासा है, उसी तरह से मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, और वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो पूरा करेगी। क्योंकि जो जमीन उस बारिश का पानी पी लेती है जो उस पर बार बार होती है और उनके लिए कारामद सब्जी पैदा करती है, जिनकी तरफ से उसकी काश्त भी होती है, वो खुदा की तरफ से बरकत पाती है। और अगर झाड़ियां और ऊंट कटारे उगाती है तो नामकबूल है और करीब है कि लानती हो और उसका अंजाम जलाया जाना है। करीब है कि लानती हो और उसका अंजाम जलाया जाना हो। अपनी जिंदगियों को देखें, इतना सा दूर रहने से हमने कौन कौन सी कोई खानदार भूतियां, कोई झाड़ियां निकल आई हैं जो कि खुदा के कलाम को आगे दिल की जमीन पर फैलने नहीं देती, उस पौधे को बढ़ने नहीं देती। जरा देखें उस खेती को, अपने दिलों में झांकें और उन चीजों को दूर करें। आप देखते हो जब फूलों के पौधों के दरमियान में उनके इर्द गिर्द जब झाड़ियां बूटियां उगती हैं, खारदार झाड़ियां निकलती हैं, तो माली फिर खुरपा लेते हैं और उसके साथ उनको निकालते हैं। और जब निकालते हैं तो फिर उसके बाद वो पौधा जो है वो बड़ी अच्छी तरह से आज़ादी के साथ बढ़ता है। पहले झाड़ियां उसको दबा देती हैं। तो इसी तरह से अपनी जिंदगियों को हमें टटोलना चाहिए, वरना यहाँ पर क्या लिखा है? और अगर झाड़ियां और ऊंट कुटारे उगाती है वो जमीन, तो नामकबूल हो, करीब है कि लानती हो और उसका अंजाम जलाया जाना है। उसी यीशु ने भी यूहन्ना के 15 बाब के दुआयत में फरमाया, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे वो छांटता है कि वो ज्यादा फल लाए। यूहन्ना 15:6 में लिखा है, अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देंगे और वो जल जाने के बाद वो डाली जो है और उसका अंजाम यहाँ पर क्या दिया है? जो पहले हमने पढ़ा, करीब है कि लानती हो और उसका अंजाम जलाया जाए। और हम अपनी जिंदगियों को देखें, हमने कहाँ तक अपने रब की मर्जी को के मुताबिक चले हैं। रब का कलाम जो है वो ही खुदा की मर्जी है, और उसके मुताबिक अगर चलेंगे तो हम रोज बरोज में बरकत पाएंगे, सलामती पाएंगे। खुदा हमारी हिफाजत को करता है, क्योंकि उसने वादा किया और इसके लिए दुआ की, इसके लिए दुआ भी की जाती है बाकायदगी से, क्योंकि ये मुझला चीज़ की जो खिदमत है कि मैंने दुआ करनी है। दुआ की जाती है कि मुल्क में वबा है, हालात कैसे हैं, खुदा सबको महफूज रखे। अपने मुल्क के लिए भी दुआ करते हैं और पूरी दुनिया के लिए दुआ करते हैं कि खुदा ये वबा इस मुल्क से मौकूफ हो जाए, पूरी दुनिया से मौकूफ हो जाए, और उसी तरह से फिर चहल पहल हो, उसी तरह से बाजार खुले, उसी तरह से लोग खुले, उसी तरह से रौनकें लगे। और खुदावंद चाहता है कि खुदावंद के हुजूर में अपनी गलतियों का एतराफ़ किया जाए, अपनी गलतियों को माना जाए। कुछ लोग हैं तो अपनी गलती होती भी है मगर नहीं मानते। तो ज़रूर है कि अपनी गलतियों को माने, कोताहियों को माने, अपनी गफलतों को माने और खुदा से
रहम के तरफ। हालेलुया। इससे ज्यादा खुदा हम सबको बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को खुदा